Welcome all back to a new chapter of social studies, and that's lesson 5, movement towards independence. It's going to be an interesting chapter with lot many short and interesting stories added to it. And yes, of course, you will be sent few short videos which will make it still more interesting, right? So let's start. The period from 1920 to 1947 is said to be Gandhian age. Gandhian age means the period where we have seen Gandhiji coming to India after having that satyagraha, successful satyagraha movement in South Africa, and from 1920 onwards how he carried forward various satyagrahas in our own country, and all were those successful satyagrahas like salt satyagraha and many other various movements were carried out by him. So this period was usually termed as Gandhian period and the Gandhian movement of struggle for independence. The second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional rights. अच्छा, ये जो सारी मूवमेंट्स हो रही थी, दे वर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री, एंड इवन द सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया is said to be the struggle for having the rights in the, that is constitution rights. We have those 6 rights that we enjoy today as in our constitution. तो इसके लिए मूवमेंट चल रही थी to enjoy those freedom, to enjoy the rights. Moreover, it is a struggle for India's freedom also. This struggle passed through a stream of events. मतलब ये जो स्ट्रगल हुई थी इंडिया के फ्रीडम के लिए, वो 1 या 2 इवेंट नहीं हुई थी कि ये कुछ हुआ 1-2 दिन और मिल गया फ्रीडम हमें. नो, it passed through lot many events and it had a uniform effect of it. So let's see the effects in this chapter. Simon Commission, 1942. Montfort, that is Montague-Kelms from 1919. Amendment मतलब कि पूरा नहीं बदलना, लेकिन एक स्लाइड थोड़ा सा बदलाव ले आना. So Montfort Amendment declared that a commission, that is a group of people, should be sent to India after 10 years to examine the effect, that is the impact and operation of the constitutional reform, and to suggest more reform for India. But 2 years later, government appointed Simon Commission. अब तय ये हुआ था कि 10 साल के बाद एक कमीशन भेजी जाएगी इंडिया में, दैट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, एंड थोड़े बहुत सुझाव पेश किए जाएंगे. न्यू रिफॉर्म्स विल बी सजेस्टेड टू द इंडियंस. दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, मतलब थोड़े बहुत बदलाव ले आएंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन हुआ ये कि 2 साल में ही उन्होंने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया. राइट, गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन इन 2 years. Commission consisted of Sir John Simon and 7 other members, that is total 8. Counting Sir John, total 8. All of them were members of British Parliament. अब ये all 8 members कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के members थे. अब आ क्यों रहे थे? इंडिया में सजेशन देने, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्मेशन लाने, जिसमें कि इंडिया के लिए कुछ बदलाव लाना था, इंडियंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने थे. लेकिन वो लोग इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे जिनको इंडिया के बारे में कुछ पता ना था, जिनको इंडिया के धर्म के बारे में नहीं पता था, जिनको इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर के बारे में नहीं पता था. वो लोग आ रहे थे टू हैव अ मीटिंग टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फॉर द इंडियंस, और एक भी इंडियन मेंबर का इंक्लूजन नहीं था इस मीटिंग में. सो दिस इज व्हाट द इंडियंस रिवोल्टेड, कि हमारे लिए अगर कुछ कर रहे हो तो हमारे लोगों का उस मीटिंग में होना ज़रूरी है. बट दे डिडंट डू इट. द ब्रिटिशर्स had only those all 8 members in the British Parliament as Britishers, not a single Indian.
इंडियंस रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन. इंडियंस ने तो सुझाव दिया कि भाई इंडियन मेंबर्स को तो लेना होगा ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, पेन्स आप समझ सको, हम समझा सके आपको. बट ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड दिस रिकमेंडेशन, मतलब सुझाव, सजेशन. तो हमारा ये सजेशन ब्रिटिशर ने तो रिजेक्ट कर दिया. नो इंडियंस विल बी अलाउड. सो द इंडियन डिसाइडेड टू अपोज इट. सैमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद स्ट्राइक्स. तो जैसे सैमन कमीशन व्हेन दे एंटर्ड इंडिया, देयर वर स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री. असेंबली मतलब बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, मीटिंग्स करना, रास्ते पे जुलूस निकालना, दैट इज प्रोसेशन, लाउड स्लोगन्स ऑफ सैमन गो बैक, एंड अनफॉलिंग ऑफ ब्लैक फ्लैग्स एंड अप्रैल, मतलब कि काले झंडे लहराए गए, काले कपड़े, मतलब दे यूज्ड टू शो दैट ब्लैक वाज द साइन ऑफ देयर रिवोल्ट and it shows the sign of negativity, right? And the British government suppressed the movement mercilessly. फिर तो बहुत ही क्रूअली ब्रिटिशर ने इंडियंस को मारा, पीटा, टॉर्चर किया. मर्सीलेसली मतलब बिना दया के, बिना दया भाव, राइट? वेरी मर्सीलेसली दे सप्रेस दिस मूवमेंट. असिस्टेंट पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ऑर्डर लाठी चार्ज ऑन लालाजी's प्रोसेशन. और तभी एक प्रोसेशन ऐसा भी निकला था जहाँ पे उनके लीडर थे लाला लाजपत राय, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई उन पे अटैक किया जाए. एंड लाला लाजपत राय was injured seriously while taking the leadership of this procession Lahore. Few months later he passed away. The news of Lalaji's death instigated, means it increased, created, आग लगाना जो हम कहते हैं. It instigated Veer Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, and thus this was the reason why these three, that is Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, killed Saunders. Then there was a Nehru committee that was set up. With the opposition of Salmon Commission, Hindi Wazir Burkhan presented a draft of the constitution as in Salmon Commission, in which it stated that Indian leaders of all the parties should frame, that is formulate, proper constitution which the British government will further think upon. अब सैमन कमीशन को तो हमने अपोज किया, तो हिंदी वजीर बुरकेन हेड ने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, राइट? जो सैमन कमीशन में प्रेजेंट करने वाले थे कि भाई इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होगा. यू नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव ऑलरेडी डन. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सैमन कमीशन में प्रेजेंट होने वाला था, वो बुरकेन हेड ने प्रेजेंट किया इंडियन लीडर्स के सामने जब हमने इस सैमन कमीशन को अपोज किया विद स्ट्राइक्स एंड ऑल. अब ये हिंदी वजीर बुरकेन हेड ने जैसे ही ये प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा दैट जस्ट गो थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड थिंक अपॉन इट, एंड यू कैन फ्रेम योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट विल थिंक अपॉन इट, हम सोचेंगे इसके बारे में. स्टेटेड दैट द इंडियन लीडर्स ऑफ ऑल द पार्टीज शुड फ्रेम एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन which the government will further think upon. By understanding the challenges of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee report. अब ये तो एक चैलेंज डाला था ब्रिटिशर ने. हिंदी वजीर बुरकेन हेड ने हमारे सामने एक चैलेंज फेंका था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के तो दिखाओ, हम भी तो देखें आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो. लेट्स सी हाउ मच नॉलेज यू पीपल हैव, लाइक अस, लाइक ब्रिटिशर्स, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. आप बना के दे दो हमें, हम सोचेंगे बाद में. ब्रिटिश गवर्नमेंट विल थिंक अपॉन. अब ये चैलेंज तो समझ में आ गया इंडियन लीडर्स को. उन्होंने नेहरू कमेटी बिठाई. दिस रिपोर्ट विच वॉज गिवन इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट, विच स्टेज द डोमिनेंट स्टेटस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, एडल्ट सफरेज. और हमने जो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट बनाया, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी गई थी जो आज हमें मिल रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू. That is dominant status, independent judiciary, our 6 fundamental rights, our voting rights, that is adult suffrage, and eventually अब जो होना था वो तो फिक्स था ही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट. तो हमने जो भी सुझाव दिए नेहरू रिपोर्ट थ्रू, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिए.
demand for complete independence. During the time, National Assembly members Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders. अब एक्टिव नेशनल लीडर्स कौन थे उस टाइम पे? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, एंड दे वर द प्रोपोगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. प्रोपोगेटर्स मतलब जो प्रोपागेंडा करे, जो लोगों तक अवेयरनेस फैलाए, न्यूज़ पहुंचाए. तो दिस पीपल, दिस ग्रेट लीडर्स वर द प्रोपोगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेट. दे वर नॉट like happy and with dominant status. मतलब कि इनको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था कि भाई इस एरिया में फ्रीडम मिला या उस एरिया में फ्रीडम मिला. we wanted complete independence, right? So on the bank of river Ravi in Lahore, under leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed the resolution of complete independence. तो अब हुआ ये कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि इन लाहौर, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर एक रिजोल्यूशन पास हुआ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. आफ्टर दैट ऑन 26 Jan 1930 मेंबर्स टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. फिर 26 Jan 1930 को हमने, हमारे सारे मेंबर्स ने, लीडर्स ने ये प्रॉमिस दी, ये ओथ लिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड दैट we will celebrate 26 Jan as a Independence Day, right? लेकिन हुआ ये, अब ये हुआ 1930 में. 17 years के बाद हमें थोड़ी ना पता था कि 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा. तो हमें तो मिला 1947 में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस. तो 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे ही देना था नाम. अब ये 26 Jan का भी इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि यहाँ पे तो ओथ लिया गया था ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट? तो फिर हमने 26 Jan को नाम दिया रिपब्लिक डे. और नवंबर में ऑलरेडी हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कंप्लीट कर लिया था इन 1949 नवंबर. बट वी वेटेड फॉर 2 months फॉर 26 Jan टू अप्रोच, एंड देन वी implemented a constitution on 26 Jan 1950, right? So 26 Jan is said to be a Republic Day. Very interesting. You will see a short video also on this Dandi Yatra, and started from 12 March till April 6th. As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to Dandi village by sea coast to break the salt law. अब गांधी जी ने तो डिसाइड कर लिया था कि एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही विल गो एंड ब्रेक द सॉल्ट लॉ, एंड ही विल गो टू डांडी विलेज बाय सी कोस्ट. अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, काम करो भी मत और लड़ो भी मत, ऊंची आवाज़ भी मत करो, पीसफुली चुपचाप, होमवर्क भी मत करो, टेस्ट भी मत दो और ना भी मत बोलो, ठीक है ना? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डिसओबे करो रूल्स एंड रेगुलेशन को, बट विथ फुल मैनरिज्म. दैट इज व्हाट गांधी जी कैरिड आउट ओवर हियर, कि डिसओबे गवर्नमेंट रूल्स बट विथ फुल civility, no violence. So on 11th of March evening, in the assembly of thousands of people, that is get together, that is coming together, that is assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was sent. Even if people got arrested, with strong determination of non-violence, struggle against government continue. और गांधी जी ने ये भी मैसेज दिया कि हम स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे, हम पकड़े जाएंगे, हमें मारा पीटा जाएगा, बट वी विल फॉलो नॉन वायलेंस, राइट? वायलेंस से दूर रहेंगे, एंड इन दिस स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट, और हम ये कंटिन्यू करेंगे. ऑन 12th March 1930, अंडर हिज लीडरशिप गांधी जी स्टार्टेड दांडी यात्रा with his supporters from Harijan Ashram, now Gandhi Ashram, singing the hymn Vaishnav Janto Tene Kahiye, Je Peer पर आई जाने रे. Gandhi ji said, in Dandi Yatra 29 March 1930, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to the ashram without achieving freedom. That is complete independence. That is, I will die the death that is on the way. Maybe roadside death I'll get, that of a crow or dog like. But I'll not return to this ashram till I achieve, till I attain
complete independence for my people, and brave never run from the battlefield. The one who runs by seeing the struggle is not brave. तो battlefield से या struggle से या डर देख के जो लोग भाग जाते उसको हम brave नहीं कहते. तो brave कौन है? जो भागते नहीं, दुख देख के, स्ट्रगल देख के, चैलेंजेस देख के, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करने वाले डरपोक होते. गांधी जी along with his supporters started the Dandi Yatra. This march was 370 kilometers, which included Raslali, Bareja, Nadiyad, Anand, Boryali, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari, as well as small regions, villages, districts. During Dandi March in this region, people will explain the reason for civil disobedience movement and breaking the salt law. अब हर एक गांव पे रुकते जाते रात को, लोगों को वहाँ पे मीटिंग में गांधी जी और उनके फॉलोअर्स समझाते कि हम क्यों ये डांडी यात्रा पे निकले हैं, रीज़न क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वाई वी आर आउट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. तो ये सब समझ देते लोगों को, और ज़्यादा लोग ज्वाइन होते रास्ते में उनको. As Dandi March passed through the small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with toran, and showed consigns for the satyagraha. Dandi Yatra had a wonderful impact in creating great faith, unity, consciousness among people. तो बहुत ही डीप इम्पैक्ट हुआ लोगों पे, बहुत ही गहरा असर हुआ इसका लोगों के मन पे, और बहुत ही अनबिलीवेबल इफेक्ट हुआ. There was unity everywhere. There was faith everywhere among the people, and consciousness, awareness among people all over the country. All of the nation was having a wave of satyagraha. Gandhi ji, along with his colleagues, that is followers and supporters, reached Dandi after 24 days of march, 5th April 30. On early morning of April 6, Gandhi ji broke the salt law by picking a handful of salt from the sea coast. In a loud voice, Gandhiji stated, "I have broken the salt law." While having a look and talk to the people, that is, while addressing the people gathered there, he said, "I by this event am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire." मतलब कि अगर किसी चीज़ को मतलब आयरन की चीज़ ले लो, लोखंड, आयरन के रॉड पे रोज नमक लगाते जाओ, वन फाइन डे यू विल सी इट विल रस्ट, और उसके ऊपर से एक लेयर निकलता जाएगा. फिर भी कंटिन्यू करो नमक लगाना उसे, थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो मोटा सा जो रॉड है वो धीरे 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 पतला होता जा रहा है, क्योंकि एक एक लेयर निकलती जा रही है उसके ऊपर से. और तुम रोज एक दिन मिस किए हुए डेली रेगुलरली उस पर नमक लगाते ही रहो बहुत सारा, वन फाइन डे इट विल ब्रेक, it will fall down, right? It will crumble. आयरन कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन नमक लगाने पे वो ब्रेक हो जाएगा, राइट? उसकी स्ट्रेंथ चली जाती है. दैट इज व्हाट गांधी जी जस्ट इनडायरेक्टली वांटेड टू से दैट वे, दैट ही डिडंट पिक अप द सॉल्ट एंड वेंट एंड अप्लाइड इट टू द पिलर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. इनडायरेक्टली द मीनिंग इज दिस कि मैंने ऑलरेडी ये सॉल्ट लगाना चालू कर दिया है. अब ब्रिटिश का जो बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है हमारे कंट्री में, वो बहुत जल्द ही गिरने वाला है, राइट? एंड श्री महादेव भाई देसाई हैज कंपेयर्ड दिस इवेंट एज महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनंसिएशन. Journalists, photographers, writers, historians of India and across the world visited and published report about what they witnessed in their own newspapers and booklets. पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे, उन्होंने देखा. सिर्फ इंडियंस नहीं, वर्ल्ड ओवर के जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, राइटर्स, फिर इंडियन हिस्टोरियंस थे, बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड. दे केम ओवर हियर, दे पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ व्हाट दे सॉ इन देयर ओन न्यूज़पेपर्स एंड बुकलेट्स. In this way, Dandi Yatra, which started from Sabarmati Ashram on 12 March, was nationally accepted, acclaimed, praised. वाह की गई इस चीज़ की पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में. Achieved its physical completion, complete हुआ ये physically, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. लेकिन salt लगाना start हो चुका था, British Empire weak करना, British Empire का weak होना शुरू हो चुका था,
राइट, क्योंकि नमक लगना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ब्रिटिश एम्पायर का बेस हिलने लगा था और बहुत जल्द गिरने वाला था वीकनेस में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जनरेटेड न्यू नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल ऑफ इंडिया। एक नई जागृति फैली लोगों में, इंडिया में। द ब्रिटिश पुलिस बेट देम मर्सिलेसली, बहुत ही टॉर्चर किया, बहुत मारा, क्रूअली, लाठी चार्ज, अरेस्ट, शूटिंग, ऑपरेशन ऑन विमेन, as torture on women and children continued, but agitation didn't decrease. Agitation मतलब ये रिवोल्ट हमारा कम नहीं हुआ। और हमारे ये रिवोल्ट कैसा था? एज पर गांधी जी सीख, ये था नॉन वायलेंट, राइट? सो लेट्स मूव अहेड. So as we saw up till here about how Shri Mahadev Desai considered it as Mahabhinishkraman, and this civil disobedience movement, how it generated new awareness among the people all over the country. And the British police continued to beat the Indian people mercilessly, that is cruelly. There was lathi charge, arrest, shooting, operation women, children continued, but still the revolt didn't decrease. It kept on moving ahead, but that was full of non-violence. During Dandi month, numerous constructive program. अब constructive program मतलब क्या? कि something that you can see, which you can easily see and you can appreciate, like the Hindu-Muslim unity and the boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability. बहुत सारे constructive programs carry out किए और एक प्रॉमिस दी कि सोशल सर्विस करते रहेंगे. दांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली कंट्री वाइड अवेयरनेस, मतलब सिर्फ ये दांडी यात्रा या सॉल्ट लॉ ब्रेक करने से सिर्फ अवेयरनेस नहीं आई, बट इट ऑल्सो ब्रॉट फेम इन रिस्पेक्ट टू नॉन वायलेंस स्ट्रगल एंड मूवमेंट वर्ल्ड वाइड. लेकिन नॉन वायलेंटली अगर हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, वो बात फेमस हुई ऑल ओवर द कंट्री and worldwide. Processions, programs, assemblies were conducted for boycotting foreign goods. अब programs नए start किए गए, इसके अंदर वो क्या थे कि भाई foreign goods का boycott करना है, foreign liquor prohibit करना है, picketing on liquor making, not to allow the making of liquor, not giving revenue tax, not to pay the tax, but with full obedience. Civil disobedience movement, मतलब कि डिसओबे करो बट विथ फुल सिविलिटी, नो वायलेंस. फिर सत्याग्रह कैरी आउट हुआ टू रिमूव अनटचेबिलिटी, टू वीकन दिस रिवोल्ट एंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन. द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड लाठी चार्ज. अब हमारे ये एजिटेशन, रिवोल्ट, सत्याग्रह स्टॉप करने के लिए, स्ट्रगल स्टॉप करने ब्रिटिशर ने लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया. इम्प्रिजनमेंट, अदर टॉर्चर, दैट इज एट्रोसिटीज. People reacted by destroying the railway station. अब आ गया वायलेंस. अब हमने वायलेंस हाथ में ले लिया, दैट इज हमने रेलवे स्टेशन डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया इंडियंस ने. इंसिडेंट्स लाइक suppression of agitation under leadership of Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi at Wadala, Bombay. Struggle against foreign liquor under leadership of Kasturba Gandhi in Bombay. Rasana in Surat and in Viramgam during salt law agitation. Renunciation, that is leaving, त्याग कर देना, renunciation of government job, as well as removal of children from government school were the major highlights of this movement. अब मेजर क्या दिखाई दे रहा था ऑल ओवर द कंट्री कि लोगों ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना बंद करवा दिया, लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी. ये सारे फिर स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन लिकर and many such events took place during this movement. Now Gandhi-Irwin Pact was signed, Round Table Conference and Moratorium of Satyagraha. Gandhiji was called upon by the Britishers for the Round Table Conference related to constitution structure and reform. अब गांधी जी को बुलाया गया for the Round Table Conference के भाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है. उसके कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम हो चुका था, उसमें थोड़े बदलाव लाने, तो आप आ जाइए. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस लीडर्स एब्सेंट रहे.
तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फ्यूटाइल हो गया, मतलब 0-0, उसकी कोई असर ही नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं. टू रिकंसाइल विथ कांग्रेस, टू यूनाइट विथ कांग्रेस, an agreement, that is a pact, was signed between Gandhiji and Irwin, which became famous as Gandhi-Irwin Pact 1931 March, in which permission of free collection or manufacture of salt by people near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main points. अब इस गांधी-इरविन पैक्ट में मेन पॉइंट क्या लिखा गया था कि जितने भी इंडियन सी कोस्ट के नज़दीक रहते हो वो सॉल्ट बना सकते हैं. फ्री कलेक्शन एंड फ्री मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट कैन बी डन बाय देम. इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी अकेले थे इस मीटिंग में, दी ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कांग्रेस, एंड ब्रिटिशर्स हैड वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स, मतलब पार्शलिटी वाले पॉइंट्स डाल दिए उन्होंने फॉर वेरियस रिलीजियस कमिटीज टू विच गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी. सो कॉन्फ्रेंस वंस अगेन बिकेम 0-0, फ्यूटाइल, राइट. पहले में तो कोई गया ही नहीं, इसलिए फ्यूटाइल. सेकंड इसलिए नहीं एक्सेप्ट हुआ, गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड. ही सेड कि यहाँ पे तो जितने भी पॉइंट ब्रिटिशर ने मीटिंग में रखे थे वो सारे हमारे अलग अलग धर्म के लिए पार्शलिटी वाले थे और हमारे इंडिया की यूनिटी को तोड़ने वाले थे ये पॉइंट्स. सो ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, ही लेफ्ट द मीटिंग, राइट. नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट, लीव इंडिया, कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड सिचुएशन, that is a world war that was going on at that time. Congress Working Committee decided to end the individual सत्याग्रह, right. गांधी जी ने सोचा कि चलो अब इंडिविजुअल सत्याग्रह का एंड ले आए, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, ब्रिटिशर को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं देना है हमें. ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू चीट द पीपल ऑफ इंडिया बाय क्रिप्स मिशन. लेकिन एक बाजू जहाँ पे गांधी जी सोच रहे थे अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, हम सत्याग्रह कैरी आउट नहीं करेंगे, उनको ज़्यादा हम टेंशन नहीं देंगे, तो दूसरी ओर देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हमें एक के बाद एक हम पे हमसे चीट कर रही है, राइट. अब इस बार चीट किया उन्होंने इंडिया को बाय क्रिप्स मिशन. सो इंडियंस वर वेरी एंग्री एंड नॉट सेटिस्फाइड, नॉट हैप्पी, दे वर डिजेक्टेड, इंसल्टेड. Therefore, people of India now had no faith in British people. They understood that British are not ready to leave India. Gandhi ji advised the people to come out of sorrow and be prepared to give a new and last fight. अब लोग तो बेचारे दुखी हो गए कि भाई इनको किसी तरह से भी निकालना है, लेकिन इनकी जो सोच है ब्रिटिशर की वो तो लग रहा है कि वो यहाँ से और 100-200,000 साल तक नहीं जाएंगे. तो अब सारे दुखी हो गए. लेकिन गांधी जी थे एकदम स्ट्रांगली खड़े हुए. उन्होंने एडवाइस दिया लोगों को दैट कम आउट ऑफ दिस सैड फुल कंडीशन and be prepared, be ready, be all of you prepare yourself to give a last fight, a new and last fight against the Britishers. और उनको तो जाना ही है इंडिया छोड़ के. So on 9th August 1942, resolution of Quit India movement was passed in the working committee of Congress held at Mumbai. On the second day of the resolution, Gandhi ji, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, other great Congress leaders were arrested. एंड न्यूज़पेपर्स व बैन. तो सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में डाल दिया. रीज़न ये है कि अगर लीडर्स ही जेल में रहेंगे तो आम आदमी, कॉमन आदमी कैसे लड़ पाएंगे ब्रिटिशर के अगेंस्ट. ये उनकी सोच थी जो गलत थी. फिर न्यूज़पेपर बैन करवाए गए. रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो, उनको भी अरेस्ट किया गया साइमल्टेनियसली, दैट इज साइड बाय साइड. अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स रिजल्टेड इन नेशन वाइड स्ट्राइक. गांधी जी और बाकी सब लीडर्स को जैसे ही जेल में डाला तो पूरे कंट्री में स्ट्राइक अनाउंस कर दी गई. टू दिस गांधी जी सेड, दिस इज द लास्ट फाइट इन माई लाइफ एंड देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया शुड मेक ऑल अटेम्प्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस. और गांधी जी ने कहा तब कि ये मेरे लाइफ की लास्ट फाइट है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए. सो वी विल डू आवर बेस्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस. एंड ही गेव द स्लोगन डू और डाई, राइट. स्ट्राइक्स during Quit India movement. The village and city regions of the country, including workers, farmers, youth, students, teachers, businessmen, women, all came ahead for this movement. सारे, हर एक कास्ट के, हर एक जात पात के, हर एक पोस्ट के, पढ़े अनपढ़ गरीब पैसे वाले सारे आ गए and they joined this movement.
They came in the forefront in the movement. Workers went on strike in factories. Iron factories in Jamshedpur and cotton mills at Madras, 2 were on strike. सारे लोग strike पे चले गए. 1 lakh mill workers of 75 cotton mill industries in Ahmedabad went on peaceful strike for 105 days. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई रिवोल्ट नहीं, चुपचाप बैठ गए स्ट्राइक पे, राइट, फॉर मोर देन 3 months in Ahmedabad. 75 cotton mills, 1 lakh mill workers strike पे गए. College and schools observed strike. Nearly 3.5 months markets in Ahmedabad were closed. Harmful activities during Quit India movement. अब harmful activities कौन सी हुई? Anger against British government was being expressed from every nook and corner of the country. Nook and corner मतलब हर एक corner of our country से ब्रिटिश के अगेंस्ट तो गुस्सा जाहिर हो ही रहा था. लोग एक्सप्रेस भी कर रहे थे अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से. Suppression against peaceful people by the Britishers led to violent situation. अब जो चुपचाप बैठे थे पीसफुली जो अपना काम कर रहे थे उन पे भी ब्रिटिशर ने टॉर्चर करना शुरू किया. तो नेचुरली अब एक नया सिचुएशन खड़ा हो गया, दैट वाज वायलेंट. पीपल बिकेम वायलेंट. दे नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड, दैट इज इंडियन पीपल नॉट ओनली रैंसैक द पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज बिल्डिंग, रेलवे लेन्स, पूल्स, ब्रिजेस, रोड्स, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड लूटिंग नाउ. पहले तो सिर्फ डिस्ट्रॉय करते थे, अब डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ लूट करने लगे ऑफ द एसेट्स, दैट इज प्रॉपर्टीज, and set on fire government properties. And in this railway incurred heaviest losses. In many of the areas people used bombs also. तो ये तो गांधी जी के रूल के अगेंस्ट था. नॉन वायलेंस वो कहते थे, लोगों ने अब अपना लिया था वायलेंस. Failure of the government in crushing the struggle. The government tried to stop this movement cruelly with hard hand. They tried to suppress the movement. Struggle started from a small end to large extent by destroying government system. तो लोगों ने तो गवर्नमेंट की पूरी सिस्टम को हिला दिया, डिस्ट्रॉय करने लगे सब कुछ गवर्नमेंट का. More than 70,000 people were imprisoned, 538 gunshots were fired, 1,028 people lost their life, 3,200 people were injured. Students were injured in gunshots, especially in Ahmedabad and Patna. Unique means very different political awareness was created. एक अलग माहौल खड़ा हुआ था अमंग द पीपल, कुछ अलग, जहाँ पे डर नहीं था. लोगों में एक ताकत आ गई थी, एक उत्साह आ गया था टू अचीव फ्रीडम, टू फाइट फॉर फ्रीडम. दिस मूवमेंट गेव क्लियर वार्निंग टू द ब्रिटिशर्स एंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज दैट इंडिया नाउ कैन नॉट बी मेड स्लेव एनी मोर. अब ये तो एक क्लियर मैसेज ना सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला, पूरे वर्ल्ड को मिल चुका था कि अब कोई ऐसा कुछ बचा है ही नहीं कि इंडिया को आप नौकर बना सको. अब तो आपको निकलना होगा इंडिया छोड़ के. यू विल हैव टू क्विट इंडिया वेरी सून. द स्ट्रगल रियली सिग्नल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया. और ये जो स्ट्रगल थी वो सिग्नल दे रही थी ब्रिटिशर्स को दैट प्लीज नाउ बी आउट ऑफ इंडिया, नाउ यू कांट स्टे ओवर हियर. द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वांटेड फुल इंडिपेंडेंस. अमेंडमेंट, थोड़ा बहुत बदलाव for Dominion status was almost invisible by this struggle. After a struggle of 5 years, India achieved independence. And now let's move on to Azad Hind Fauj, Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack in Orissa. That is on 23rd Jan 1897. You have a very interesting story and a short note too. कहाँ जाएगा short note, लेकिन है long note for your detailed answer 4 marker. So learn it perfectly with your 1 marker. Objectives also included all. So Subhash Chandra Bose कब born हुए थे? 23rd Jan 1897. Where he was born? In Cuttack in Orissa state. His father's name Rai Bahadur Janakinath Bose. Who was he? He was a government lawyer in British judiciary, means a government servant. His mother Parvati Devi. She was a philanthropist. Philanthropist मतलब कि बहुत ही लोगों की सेवा करना, मदद रूप होना लोगों में, सेवा भावी. प्रेडिक्शन वॉज दैट, लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया था दैट दिस बंगाली लैड मतलब बॉय विल बिकम सिंसियर गवर्नमेंट सर्वेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वेंट. लोगों को ऐसे लगा था कि पापा गवर्नमेंट लॉयर तो बच्चा भी बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट. बट ही वेंट टू बिकम अ स्टॉन्च ऑफ ए स्ट्रिक्ट फ्रीडम फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर. लेकिन जो प्रेडिक्ट हुआ था, जो अंदाज़ा लगाया गया था, उससे कुछ ऑपोजिट हुआ.
सुभाष चंद्र बोस तो बन गए कट्टर दुश्मन ब्रिटिशर के, a staunch freedom fighter. After passing exam with good marks from Calcutta's Presidency College, you will see a video on it. He went to England for further studies. He passed very difficult ICS examination, that is Indian Civil Service, at 4th number, returned to Calcutta. Seeds of revolution were planted in his mind due to insulting behavior, his attitude and pride of the British professor at the Presidency College. अब जो इंसल्टिंग बिहेवियर था ब्रिटिश प्रोफेसर का प्रेसिडेंसी कॉलेज और जो एक प्राइड थी उन प्रोफेसर्स में, उसकी वजह से एक सीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑलरेडी प्लांट हो चुका था सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में कि रिवोल्ट तो करना पड़ेगा इनका. एंड बिकॉज दिस प्रोफेसर ऑलवेज इज टू शो वेरी बैड बिहेवियर टुवर्ड्स द इंडियंस, was very much interested in the Indian independence struggle. He became active member of National Assembly. He joined Swarajya Party in 23. He soon became very popular leader among youth. He was in the top in civil disobedience movement, therefore jailed many times. और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो काफ़ी बार उसकी वजह से वो पकड़े भी गए, जेल में भी गए, बिकॉज ही वाज अ लीडर इन ऑल दिस मूवमेंट. एट द यंग एज ऑफ 41 he was elected as president of Congress meeting as convention at Haripura, Surat, and this showcased his ability. और उन्होंने बता दिया that I am able to do this great works for as a freedom fighter. He left Congress. अब थे तो वो गांधी जी के साथ, बाद में छोड़ना पड़ा क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ जो पॉइंट्स थे डिस्कशन जिस पे वो करते या जो उनके ओपिनियंस थे उसमें काफ़ी डिफरेंस था. तो उन्होंने हाँ मेथड सेम थी दोनों की, अनटचेबिलिटी को दूर करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सोच काफ़ी मिलती जुलती, काम काफ़ी सेम थे, लेकिन फिर भी कई ऐसे उनके ओपिनियन थे जो दोनों के डिफरेंट थे. तो सोचा कि चलो अलग हो जाए, वही अच्छा है. दोनों की पार्टी अलग हो गई, दोनों अलग हो गए, अपनी अपनी पार्टी बनाई. So he left the Congress as difference of opinion with Gandhiji had increased, and he established his own party called Forward Bloc to awaken plebiscite against Britishers, to awaken एक awareness create करवाने के लिए लोगों में. He traveled most of the regions of India. He was arrested under Indian Defence Code and imprisoned. फिर कई बार पकड़े भी गए, and एक बार तो under Indian Defence Code में भी under this he got imprisoned. During imprisonment, he was treated very badly. He was ill-treated. He was imprisoned at his place of residence. फिर तो एक बार घर में खुद के घर में उनको बंदी बना लिया. As his health was deteriorating, क्योंकि जब जेल में थे तो उनकी हेल्थ खराब होने लगी तो उनको उनके घर में ही जेल बना के डाल दिया. Since he was fasting unto death, he was not feeling well. He traveled in disguise of Pathan. फिर तो पठान के बेस में वो चले गए. From Calcutta, फिर पेशावर, काबुल, ईरान और पहुंचे रशिया. Later on he reached Berlin, Germany, 28 March 42. Indians living in Germany welcomed him very warmly, that is very lovingly. He urged, that is he requested, the people of India through Berlin radio to fight against British Empire. He also met Hitler in Germany, discussed in detail about the independence of India. फिर उन्होंने तो बर्लिन के रेडियो को यूज़ किया, लोगों को बताया that we should fight against the British people and fight for India. And he also met Hitler in Germany, जहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया डिटेल में अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस. फिर वहाँ से वो रोम गए, पेरिस गए टू एस्टेब्लिश मिलिट्री यूनिट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. फिर 3000 इंडियंस को उन्होंने रिक्रूट किया, एक आर्मी खुद की बनाई वहाँ पे. रसबिहारी बोस, रिवॉल्यूशनरी लिविंग इन जापान, he connected all these organizations, established Indian Independence League. तो रसबिहारी बोस बहुत इम्पोर्टेंट थे, एक लीडर. ही वॉज रिवॉल्यूशनरी लिविंग इन जापान, जिन्होंने सारे ऑर्गेनाइजेशन को चेन अप कर दिया, दैट इज लिंक किया एंड एस्टैब्लिश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू मेक इंडिया फ्री. आज़ाद हिंद फौज वाज सेटअप. Presence of 100 Indian delegates from Malaya, Japan, Sumatra, Java, Hong Kong, Borneo, Andaman, Burma, that Brahmadesh, now Myanmar, were in the organization. तो बहुत सारे लोगों ने इसमें मेंबर बने, जैसे मलया, जापान, सुमात्रा, बर्मा, अंडमान, अलग अलग देश के लोग यहाँ पे आए. तो 100 Indian delegates came from these different places
And in that, Mohan Singh, a war prisoner arrested by Japan, was also present. Moreover, Rasbihari Bose voluntarily retired as the head of INA. So next comes Azad Hind Fauj and Indian Independence League. So as we move ahead with the new topic over here, we see about the Azad Hind Fauj and the Indian Independence League. After breaking the tight British security, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस को उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जेल से ले आए थे हाउस अरेस्ट में, मतलब उनके खुद के घर में उनको अरेस्ट करके रखा हुआ था, बट वहाँ से भी वो भाग निकले. टाइट ब्रिटिश सिक्योरिटी को ब्रेक कर दिया उन्होंने. एज आई टोल्ड यू, आई विल शो यू अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट. एंड सुभाष चंद्र बोस क्लेवरली रीच जापान फ्रॉम बर्लिन इन अ सबमरीन इन 1943. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Moreover, Rasbihari Bose of Indian Independence League invited him to be the head of this league. League मतलब काफ़ी बार कर चुके हैं हम, ये वर्ड हमने सुना हुआ है. League that is organization, right? जैसे कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, मतलब एक पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन. तो रसबिहारी बोस जो इंडियन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के जो थे एन एक्टिव मेंबर, he invited Mr. Bose to be the head of this organization. Japan would provide each and every kind of help for the freedom of our country. जापान ने तो भाई प्रॉमिस दे दी कि हम आपको हेल्प करेंगे फ्रीडम के लिए. आपको जो भी आपको मदद चाहिए, इट कुड बी मनी, इट कुड बी आर्मी, इट कुड बी वेपन्स, इट कुड बी एनीथिंग. वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू फॉर योर कंट्रीज फ्रीडम. It was promised that as Japanese army advances towards India, just imagine कि जापानीज आर्मी इंडिया के छोटे छोटे एरियाज को कैप्चर करती हुई आगे बढ़ रही है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड एंड जापान वुड गिव देम रिकग्निशन. तो जापान ने ये प्रॉमिस दी थी कि हमारी आर्मी धीरे धीरे इंडिया के छोटे छोटे राज्य की तरफ बढ़ेगी, कैप्चर करेगी, और उन छोटे राज्य की जो गवर्नमेंट हम बनाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट, राइट, उसे जापान रिकग्नाइज करेगी एज अ सेपरेट कंट्री, एज अ सेपरेट गवर्नमेंट. एंड ऑन July 2nd, 43, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan. There he was elected as the president of Indian Independence League on 4th July 43. Moreover, Rasbihari Bose voluntarily retired. अब रसबिहारी बोस ने तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, राइट, एज अ हेड ऑफ INA, दैट इज आज़ाद हिंद फौज, or you can call it Indian National Army. He appointed Subhash Chandra Bose as the head of INA. Indians living there now got a good, proper, perfect, able leader to free their country, India. Since then, Subhash Chandra Bose was called Netaji. In his speeches and on radio, he always gives slogans like Chalo Delhi, that gives motivation, inspires the people. Let's march towards Delhi. And तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Give me blood and I will give you freedom. With this skillful guidance, और उनकी जो guidance थी perfect, he formed a parallel government. Parallel government मतलब एक बाजू तो ब्रिटिश रूल कर ही रहे थे, दूसरी ओर सुभाष चंद्र बाबू ने अपनी खुद की गवर्नमेंट खड़ी कर दी, इंडियन गवर्नमेंट, राइट. He tried to convince, समझाने की कोशिश की उन्होंने, and requested the Indians living in Southeast Asia to sacrifice everything for the independence of their country. Establishment of the small area government by Subhash Chandra Bose. जैसे जापान ने स्टार्टिंग में उनको जो प्रॉमिस दिया था, अभी हमने किया प्रीवियस स्लाइड में, that how Japanese government had promised them that will support you, और हमारी आर्मी जैसे ऐसे इंडिया के छोटे छोटे प्रोविंस कैप्चर करती जाएगी, उन एरिया को हम इंडिया की गवर्नमेंट का एक रूप देंगे और रिकग्नाइज होगा बाय जापान एज अ सेपरेट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री. तो सुभाष चंद्र बोस फॉर्म प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट, उसके PM भी बन गए उस कंट्री के, मतलब जितने एरियाज जीते थे उनके वो गवर्नमेंट बने. ही बिकेम PM. ही अलॉटेड अदर डिपार्टमेंट टू हिज कंपेनियंस एंड फॉर्म्ड अ ग्रुप, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, जैसे अभी रहता है हमारा, हमने 10th चैप्टर में किया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. दिस गवर्नमेंट वॉज रिकग्नाइज बाय मेनी कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्री ने रिकग्नाइज किया सुभाष चंद्र बाबू की इस इंडियन गवर्नमेंट जो नहीं बनी थी उसे, लाइक जापान, जर्मनी, इटाली, नेशनलाइज चाइना, बर्मा. दिस गवर्नमेंट रिकग्नाइज हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज
tricolor as national flag. It was decided to have income by supporting Japan. अब इनकम कैसे मिलेगी? तो जापान को जब भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो सुभाष चंद्र बाबू और उनके ग्रुप, उनके लोग उनको सपोर्ट करेंगे और उनको इनकम उनकी बढ़ेगी. इंडिपेंडेंट रोल एंड बाय प्रॉपर्टी टैक्स. नेताजी विजिटेड अंडमान निकोबार आइलैंड, named it as Shahid, that is martyr, and Swarajya, that is independence. Last step in martyrdom of Subhas Babu. In May 1944, under leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Prom, Kohima, now the capital of Nagaland. Then it marched. तो फिर तो नेताजी की मिलिट्री आगे बढ़ती गई. Then it marched towards Imphal, now the capital of Manipur. But after the dropping of 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima in Japan, अब सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था सुभाष चंद्र बाबू की गवर्नमेंट को खड़ा करने के लिए? जापान. अब जापान पे ही अमेरिका ने एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 बॉम्ब डाल दिए, एटॉमिक बॉम्ब, राइट, और नागासाकी एंड हिरोशिमा. तो जापान डिस्ट्रॉय हो गया. अब जापान कोई ऐसी स्थिति में था ही नहीं, वो तो सरेंडर हो गया. कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि जापान अब सुभाष बाबू को सपोर्ट करे. Thus, this is how there was the end of Subhash Chandra Bose military also. So, British and thus the financial support to the provincial government stopped. तो जो monetary support आ रहा था जापान की तरफ से towards नेताजी, it stopped. British aircraft started warfare against आज़ाद हिंद फौज. अब ब्रिटिशर ने तो तैयारियां कर ली, लड़ाई की against आज़ाद हिंद फौज. So the condition became still more serious, critical, problematic. And on 18th August 45, Subhas Babu started from Taipei airport of Formosa for Tokyo, but his plane caught fire and he got serious burns. And while undergoing treatment, he died. The mystery of his death has remained unsolved till today. Achieving independence and partition of India. Now, the day of that independence, how we achieved independence, how India was divided into 2. So the commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war. तो जो इंडियन नेशनल आर्मी के सुभाष चंद्र बाबू के आर्मी के जो कमांडर्स पकड़े गए थे as prisoners of war and they were accused of treason. तो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था and they were put on trial और उन पे केस चला. वल्लभभाई देसाई जवाहरलाल नेहरू pleaded their case. उन्होंने उनके केस लड़ाई किसने की केस के लिए? Jawaharlal Nehru and Vallabhbhai Desai, they were the lawyers. The whole country took deep, that is keen interest in the case of these IRA members. When the British government inflicted them with punishment, अब British government ने तो बहुत ही strictly punish किया उनको, तो पूरे इंडिया में protest करने लगे लोग that this is not done, right? There were protests against them in the whole country. So bowing, that is accepting the people's opinion, that is populist opinion, गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द पनिशमेंट. अब गवर्नमेंट को तो पनिशमेंट विड्रॉ कर लेनी पड़ी. दिस इवेंट्स एंड विद द नेवल म्यूटिनी, मतलब जो वॉर हुई थी नेवी में ऑफ बॉम्बे 1946, ब्रिटिश रियलाइज देयर रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर बी नाउ एक्सेप्टेबल, टेनेबल. अब तो उनको देश छोड़ना ही होगा. ऑन Feb 20, 1947, Attlee, the PM of Britain, announced that the British government shall give all the powers to the government of India. और फिर ये डिसाइड हुआ on 20th Feb 1947 कि PM of Britain उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे पावर्स इंडिया की गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे एज पर द कैबिनेट मिशन फॉर्मूला, और इंडिया को क्विट करेंगे हमेशा के लिए बाय जून 1948. दस इन दिस चेंज सिचुएशन, अब सिचुएशन तो चेंज हो गई, होना था कुछ और, हो गया कुछ और. तो माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज वाइस रॉय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल. व्हेन ही टुक चार्ज ऑफ हिज पोस्ट, कम्युनल राइट्स ऑलरेडी हैज स्टार्टेड. कम्युनल राइट्स मतलब 2 धर्म के बीच की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम. दिस स्टार्टेड इन अ कंट्री. खून खराबा, राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग. Life of so many people was at risk, and the condition of India had become worst, pathetic. In July 1946, Congress secured 201 seats out of 210. Muslim को 73 seats मिली out of 78 from different small provinces or regions of India for the prior formation of Constituent Assembly.
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ग्रुप बनाया था, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था हमारी फ्री कंट्री का. नाउ दिस पार्टी प्रेशराइज द गवर्नमेंट, मुस्लिम पार्टी, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि हमें अलग पाकिस्तान बनाना है. ऑन 16 अगस्त 46 तो टेरिबल कम्युनल राइट्स आ गए, ट्यूमल्ट, टॉर्चर और वायलेंस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री इंडिया. लुकिंग एट द सिचुएशन इन इंडिया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स, दे फेल्ट कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है. एक रास्ता है कि भाई पाकिस्तान दे दो अलग, तब जाके इंडिया में शांति बनी रहेगी. सो ऑल दिस ग्रेट लीडर्स थॉट दैट देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग. एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, एक्सेप्टिंग मतलब कि अपना लेना. तो दो डिफरेंट एक्सेप्ट का मतलब कि देयर इज नो अदर रास्ता टू एक्सेप्ट the demand of Muslim League for Pakistan, because Muslim League and Jinnah insisted for separate Pakistan. Muslim League boycotted first cabinet meeting. अब Muslim League ने पहली cabinet meeting अटेंड नहीं की. On 9 December 46, Muslim League executive held on 31st Jan 47 decided to boycott cabinet meeting. अब मुस्लिम पार्टी की जो मीटिंग हुई 31st Jan 47 को उन्होंने डिसाइड कर लिया हम कोई भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे. They decided to boycott it and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan. और दे दिया एक बड़ा सा प्रोग्राम लिख के कि we want Pakistan, we demand for it. Mountbatten convinced Nehru and Sardar Patel who understood the matter. अब माउंटबेटन ने तो नेहरू और सरदार पटेल को मना लिया, समझाया उनको और वो मान गए. और उन्होंने ये कहा कि having a well organized central government, having administrative units under the center shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many individual as autonomous and opposite constituent. माउंटबेटन ने ये समझाया नेहरू और पटेल को कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाओ जिसके अंदर पीसफुली सब काम करे, मन से काम करे, डेवलपमेंट हो, रादर देन एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए जहां पे लोग अपने अपने हिसाब से आगे बढ़े और रोज के लड़ाई झगड़े हो. राइट तो दे दो उनका अलग पाकिस्तान. नेशनल लीडर्स फाउंड दिस आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को ये एक्सेप्ट हुआ ये आर्ग्यूमेंट माउंटबेटन का, उन्होंने मान लिया. सरदार पटेल एंड नेहरू डिस्कस दिस मैटर विद गांधी जी. ही ऑल्सो नाउ हैड नो अदर वे एक्सेप्ट टू से येस. सो ही हेल्पलेसली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट. हेल्पलेसली मतलब उनके हाथ में कुछ था ही नहीं अब. सो ही एक्सेप्टेड अरेंजमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया विद हैवी हार्ट, दैट इज विद लॉट्स ऑफ सॉरो. सो माउंटबेटन प्लान आ गया फिर. ऑन March 24 वाइसरॉय माउंटबेटन प्रेजेंटेड हिज स्कीम. अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव देन द पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो माउंटबेटन के पास तो एक ही प्लान था कि भाई अलग कर दो पाकिस्तान को, तभी जाके शांति बनी रहेगी. नेशनल एंड प्रोलिफिक दैट इज ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया लाइक सरदार पटेल अंडरस्टूड द मैटर. आफ्टर मेनी डिस्कशन एंड पॉन्डरिंग दैट इज थिंकिंग, फाइनली June 3, 1947 on this date Viceroy Mountbatten decided to present a partition of India's plan. Now this particular plan is called Mountbatten plan क्योंकि माउंटबेटन ने पेश किया था इसे. जैसे एक घर में अगर there are 2 brothers, फिर उनकी वाइफ, फिर उनके बच्चे, फिर दादा दादी, ये सब साथ में रह रहे हैं. ड्यू टू सम रीजन दे हैव टू पार्ट अवे. तो कैसे हिस्से बनते हैं भाई, 2 थाली तुम्हारी, 2 थाली इसकी, 2 कटोरी तुम्हारी, 2 कटोरी इसकी. और यू नो देयर आर टू मेनी वेज. लेकिन अगर एक ही घर में पार्टीशन करना है तो, और वॉशरूम एक ही है तो भैया सुबह तुम्हारा शाम हमारा, किचन एक ही है तो सुबह का इतना काम इस टाइम पे तुम कर लेना, फिर सुबह इतना काम इस टाइम पे हम करेंगे. यू नो देन व्हेन देयर इज ओनली वन थिंग यू हैव टू डिवाइड इट एज अ टाइम वाइज. यू कैन ब्रेक ऑफ एंड डू इट जस्ट लाइक हमारे जो माउंटेन्स थे, हमारी जो रिवर्स, हमने उससे बहुत समझदारी से उसे डिवाइड किया था. यू कैन कट ऑफ द माउंटेन, यू कैन कट ऑफ द रिवर्स. तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हुए जब इंडिया को अलग होना हुआ. एंड द कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम पार्टी एक्सेप्टेड दिस प्लान. व्हेन माउंटबेटन प्लान स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, जब ये स्टार्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान का अलग करना एज पर माउंटबेटन प्लान, जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल एंड सिलेट प्रोविंस ऑफ आसाम
decided to join East Pakistan. West Bengal, East Bengal were joint, that is affiliated with India as per decision of their assembly, as of their group. West Punjab joined with Pakistan. It was decided to join Northwest Province, Sindh and Balochistan with Pakistan. Indian Independence Act, July 1947. The British Parliament passed the Indian Independence Act according to Mountbatten Plan. According to this, India's first Governor General was Mountbatten and Janab Jinnah was the Governor General of Pakistan. तो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जनाब जिन्ना. बाय दिस एक्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस on or you can say India's dependence on British rule came to an end. Means India got 100% independence from that day due to this act of 1947, July 1947. या ऐसे कह सकते हो कि India's dependence on British rule came to an end. Therefore, Gandhi ji considers this act as the only one sensible and best and beneficial act given by Britishers to India in this many years of their rule. 200 से भी ज़्यादा साल से जो उन्होंने हमें रूल किया, तो गांधी जी ने कहा कि शायद ये एक और एक ही एक उन्होंने एक्ट पास किया ब्रिटिशर ने हमारे फ़ायदे का, and it was the best plan. And the last viceroy of the British government organized a function in New Delhi at the midnight of August 14. Union Jack of England was brought down from the pole, that is from that डंडा जो रहता है जिसके ऊपर हम लहराते हैं फ्लैग को, that's called the pole. And the Indian national flag tricolor was hoisted. तो इंग्लैंड का यूनियन जैक नीचे ले आए, इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राइकलर को होइस्ट किया, लहराया हमने. Documents attributing, that is providing independence to India were handed over by Mountbatten to C. Rajagopalachari, the first Governor General of Indian in independent India. तो माउंटबेटन के हाथ से हैंड ओवर हुआ सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया टू सी राजगोपालाचारी जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बना ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज कंप्लीटेड. 15th August 47 was an excellent dawn for India. All celebrated the first independence festival very happily, cheerfully in the whole country. All were happy. Nook and corner of our country was over happy. Everywhere people hung toran, a good omen, there's a good sign on doors. And there were sweets that were distributed in schools. Many people who had taken the promise, there's wow, felt relieved on its fulfillment. But Gandhiji was deeply shocked due to the partition of India. Therefore, he was deeply plunged into sorrowful condition and he drifted into meditation. India becoming independent, तो immediate problems तो आने ही थे. Let's see. India and Pakistan, two separate independent countries, came into existence as a result of Mountbatten Plan and Indian Independence Act 1947. The resolution to the following problem had to be found out. Reorganization of military force. अब military force जो था उसको reorganize करना था, कईयों को पाकिस्तान में जाना था, कई military लोगों को इंडिया में रहना था, तो फिर से बनाना था एक मिलिट्री फोर्स. फिर डिस्प्यूट ओवर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज. अब कितनी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर डिस्प्यूट्स हुए, भाई आपका कितना हमारा कितना, आपकी थाली कितनी हमारी कटोरियाँ कितनी. डेट्स एंड क्रेडिट्स, अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो वो कौन चुकाएगा, कितना इंडिया चुकाएगी, कितना पाकिस्तान. क्रेडिट हमारे, प्रॉब्लम, सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज, पब्लिक सर्विसेज, अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लोगों को कहाँ पे क्या नौकरी देनी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कहाँ पे कितनों को क्या नौकरी देनी है, सबको सेटल करना था. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सेटल करना था. डिमार्केशन, दैट इज ड्रॉइंग ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया टू बी फिक्स एटसेट्रा. तो 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan was formed under chairmanship of Lord Mountbatten. तो फिर 5 मेंबर की कमेटी बिठाई गई, 2 from India, 2 from Pakistan, और 5th थे लॉर्ड माउंटबेटन. अंडर हिज चेयरमैनशिप स्टार्टेड दिस मीटिंग. कमेटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब अगर मिलिट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस कमेटी में बुलाते थे उस मिलिट्री रिलेटेड एक्सपर्ट को. अगर एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे थे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस रेलेवेंट सब्जेक्ट के मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बिठाते मीटिंग में. इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन both the countries admitted to accept the final decision given by the judge, that is middleman or arbitrator. And तो दोनों के बीच में अगर ओपिनियन का डिफरेंस आ जाता तो फाइनल डिसीजन
मिडिलमैन का होता, ये तय हुआ था. कंसिस्टिंग ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ पाकिस्तान अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अभी आर्बिट्रेटर कौन होता, तो एक इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, एक पाकिस्तान का, और जो थर्ड थे वो हमारे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मिलिट्री कमांडेंट जनरल ऑफ इंडिया completed the partition of army military weapons. British Army left India by Feb 2848, and all officers and employees of administration, military, judiciary were given opportunity to choose whether they would serve India or Pakistan. The military commandant general of India, he completed with all the partition of army, military, weapon, etc. अब जितनों को इंडिया में रह के सर्व करना था उनको वो छूट मिल गई, पाकिस्तान में जाना था तो पाकिस्तान उनको छूट दे दी जाने की. British Army left India by 20th Feb 48. They were given, and all were given the assurance, that is surety, that don't worry whether you go to Pakistan or you live in India, right? जहाँ पे भी रहो तुम्हें तुम्हारी पे मिलेगी, अलाउंसेज मिलेंगे, सर्विस की सिक्योरिटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, एक्सेट्रा. A large number of refugees from both the countries migrated. कई लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, कई पाकिस्तान से यहाँ आ गए as refugees, leaving their houses and properties. India solved the great, a big or tremendous problem of their rehabilitation. फिर से इन लोग जो यहाँ पे आए एज रेफ्यूजीज, उनको घर देना, उनको नौकरी देना, उनको उनके रेस्टोरेशन के लिए काम किया वेरी स्किलफुली एंड पेशेंटली हमारी गवर्नमेंट ने. The then Deputy PM and Home Minister Sardar Patel merged, that is joined, about 562 small and big princely states of India into Indian Union. तो ये एक आसान काम नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग man could only do all this thing, and that was Sardar Patel. इन्होंने 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया, मिक्सअप किया, एक इंडियन यूनियन बनाया. सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आयरन विल पावर एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, मतलब ही डिड मीटिंग्स, diplomatic meetings, and solve the problems of the country. Yet long-term planning to find a solution to problem like effects of communal riots. लेकिन आज भी जो लॉन्ग टर्म हमारे प्लानिंग चल रहे हैं, सोल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं, राइट्स होते रहते हैं, कम्युनल राइट्स ड्यू टू पार्टीशन जो हुए थे आज भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं. वो द शॉक ऑफ महात्मा गांधी इज डेथ, टू मेक इंडिपेंडेंट इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ गुड गवर्नमेंट. वीक कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर उसे बेहतर बनाना था. क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड हार्मनी, एज ट्रैंक्विलिटी इन द कंट्री. द इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एट्सेट्रा बिकेम वेरी नेसेसरी. तो काफ़ी कुछ अभी करना बाकी था, बट इट वॉज जस्ट अ स्टार्टिंग, एंड दैट इज वॉट सरदार पटेल, द ग्रेट 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 पर्सनैलिटी, इट वॉज ड्यू टू हिम दैट टुडे वी आर लिविंग एज अंडर वन शेल्टर एज इंडियन यूनियन. और वैसे भी उसके बाद की नेक्स्ट जनरेशन की गवर्नमेंट इंडिया को डेवलप करती हुई आ रही है. काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी होते जा रहे हैं, but still there are many to be solved. And yes, that all the things we will learn in detail, of course, in a very interesting way, and that will be in your 10th standard related to economics. Highly interesting, yes, of course. So this was on demand, chapter 5th. And next on demand जो मुझे WhatsApp पे मिल रहा है कि भाई आप हमारा 11th chapter भी complete करके दे दो. So 11th chapter of essays I am starting and providing to you in the next lecture. So thank you so much, and और थोड़े जोर शोर से हम आएंगे. It was just my first lecture in this my 15 days time period. So I've tried my level best to raise my voice, to reach up till your heart, to reach up till your lungs and all, but trying my level best, and hope you have loved this lecture, and thank you so much. ठीक है, हिस्ट्री है, अच्छा नहीं भी लगा होगा, फिर भी झूठ मूठ का एक बार हाँ बोल देना मुझे व्हाट्सएप पे that मैम वी लव्ड वॉचिंग द वीडियो, राइट. क्योंकि बहुत इस बार तो हर बार तो मेहनत करती हूँ, इस बार इस कंडीशन में मैंने बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने की, राइट. बट आई एन्जॉय एंड आई एम हैप्पी
that on the other side my dear children are watching me, and we meet very soon with your new demand chapter 11. और उसके अलावा अगर कोई डिमांड है तो प्लीज़ 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 गिव मी अ कॉल या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? टेक केयर ऑल ऑफ यू. मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वो तो हम भी काफ़ी रखते थे, बट वी डोंट नो व्हाट हैपन्स व्हेन. सो टेक केयर. 6 फीट का डिस्टेंस रखो. मैं तो कहूँगी अब से तो 10 फीट का डिस्टेंस रखो सबसे, राइट? बेस्ट फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड ना हो, बट डिस्टेंस एंड मास्क. So take care. Love you all. Bye. Thank you so much.